ایک خاتون بیٹھی ہیں پہ رو رہی ہیں. یہ ان کا گھر ہے, ان کے پاس سارے کاغذات کمپلیٹ ہیں. کیا وجوہات ہے کیوں اس گھر کو گرایا گیا؟ میرا گھر ایسے پھینکا انہوں نے جیسے ایک چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے نا, اتنی آسانی سے کہ یہ پتھر مارا اور نیچے گر گیا. بلڈوزر لے کر آئے وہ کرین وغیرہ, اور پولیس کی اتنی نفری تھی کہ آدھے 20-25 بندے ادھر 20-25 بندے ادھر کہ آپ ہم سے بات کریں بیٹھ کے, ٹھیک ہے جو اس کا کوئی خرچہ پانی یا کوئی چیز بنتی ہے نا وہ ہم سے آپ بات کر لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے. پھر آپ یہ ہم لوگوں کی اسے نہیں ڈھا دینا ہے آپ کو. یہ آپ کا گھر کس نے کہا؟ یہ LDA والے کہتے ہیں. میں نے دہائی ڈالی, میں نے کہا دیکھو بھائی اس طرح نہ کرو, آپ کی مہربانی ہے, مجھے میرا قصور بتا دو پہلے. جب آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کی حد نہیں ہے تو پھر آپ LDA والے کس قانون سے آ کے میرا یہ گھر گرا رہے ہیں؟ السلام علیکم, 89 نیوز کے ساتھ میں ہوں سونیا خان. میرے رقم میں دیکھ سکتے ہیں آپ اس وقت ایک گھر گرا ہوا ہے. جوہر ٹاؤن کا یہ علاقہ ہے ای بلاک. ایک گھر ہے جو مکمل طور پہ جو ہے یہاں پہ گرا ہوا ہے. ایک خاتون بیٹھی ہیں جو رو کے جن کا برا حال ہے, صبح سے شام ہو گئی ہے وہ یہاں پہ رو رہی ہیں. یہ ان کا گھر ہے اور بغیر نوٹس کے یہ گرایا گیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں, کوئی کسی قسم کا ہمیں آرڈر نہیں ملا کہ یہ گھر جو ہے یہ ناجائز تجاوزات میں آتا ہے یا کوئی اور طریقہ کار ہے یا کسی وجہ سے اس گھر کو گرانا بہت ضروری ہے. ان کے پاس سارے کاغذات کمپلیٹ ہیں. کیا وجوہات ہے کیوں اس گھر کو گرایا گیا؟ آئیے ذرا خاتون سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور سارا معاملہ جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ بتائیں کیا ہوا ہے, آپ صبح سے یہاں پہ بیٹھی ہیں اور وجہ کیا ہے, گھر کس نے گرایا ہے؟ جی یہ میرا گھر ہے, تقریباً 3 محلے سے اوپر ہی ہے. آج سے میں نے 3-4 سال پہلے یہ میں نے خریدا تھا, لیا تھا اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے سر چھپانے کے لیے کہ چلے میرا ہیلا وسیلہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, کتنے مرلے کا گھر ہے یہ تقریباً 3.5 مرلے ہے. 3.5 مرلے کا گھر ہے. کتنی مالیت کا ہے؟ بس یہ اس وقت جو جس ریٹ پہ تھا یہ میں نے اس پکڑ دکڑ کے ہم لوگوں نے یہ کام کر رہا تھا. تو اب میں نے جو تقریباً کوئی ہو گئے 4 سال سے, تقریباً 7-8 سال سے نا میں سیونگ کر رہی تھی. کمیٹیاں ڈالی میں نے, سیونگ کی کہ چلو میں یہ جگہ جو ہے اس کو بنا کے اپنے بچوں کو لوں گی اور جو اس میں آ کے میں رہائش پذیر ہو جاؤں گی. پہلے بھی 2 کمرے بنے ہوئے تھے, اس پہ رہائش ہی تھا یہ پہلے نا, لیکن میرے 4 بچے ہیں, ہسبینڈ بھی بیمار ہے میرا. تو میں نے اپنے گھر کے لیے میں نے جو آج سے 3 مہینے پہلے یہ میرے کاغذ ہے, یہ رجسٹری ہے اور یہ میرا انتقال وغیرہ جو لیگل کاغذ ہے میرے گھر کے یہ کمپلیٹ ہے میرے پاس. میں نے جسے لیا تھا اس نے یہ LDA کا جو ہے نا نقشے کے لیے وہ اس نے وہاں پہ ان سے رابطہ کیا تھا. تو اس نے جب اس نے یہ پلاٹ بیچا ہے نا تو اس نے مجھے کہا کہ باجی میں نے تو جو کرنا تھا کر لیا, لیکن اب آپ جب بنائیں گے نا تو آپ یہ چیز کاغذ لے جائیے گا ساتھ میں. میں نے تو جب اب میرا ارادہ بنا کہ چلے میں اپنے گھر کو سٹارٹ کرتی ہوں, میں ادھر LDA کے دفتر گئی ہوں. میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بن جائے گا, آپ جو ہے نا یہ کاغذ لے کر آئیں. جو پروسیجر ہوتا ہے کہ وہ پٹوار خانے جانا ہے, کئی 1-2 جگہ اور تھا. تو میں اپنے بھائیوں کے ساتھ جا کے, چھوٹے بھائی ہیں میرے, جا کے تو میں نے وہاں سے کاغذ اکٹھے شروع کیے, اس کے ڈاکومنٹس لیے ہیں. تقریباً مجھے 3 مہینے ہو گئے, روز ہی چکر میرا لگتا تھا, دوسرے-تیسرے دن LDA کے چکر لگ رہے تھے. اسی دوران نا مجھے 1-2 بندوں سے بات ہوئی LDA والے, انہوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ آپ گھر شروع کر لیں, چلے آپ نے رہنا رہائش کرنی تو آپ ایسے کریں کہ کوئی جو ہے نا مستری لگا لے, تھوڑا کرنا شروع کر دے, تب تک آپ کا یہ امپروو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے نا اس چیز پہ آئے کہ موسم بدل رہا ہے, سردی بھی آ رہی. تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے, میں انہی کے کہنے پہ میں نے مستری لگایا گھر پہ. میرا پہلے یہ بنا ہوا تھا تو آگے میں نے چھت ڈالنی شروع کی ہے, فرنٹ میں ڈالا اور ایک کمرہ اوپر لگی تھی ڈالنے کے لیے نا. اور جیسے ہی جب یہ میرے کاغذ کمپلیٹ ہو گئے میں لے کے گئی وہاں پہ, تو انہوں نے کاغذ چیک کیے تو انہوں نے کہا بی بی یہ تو LDA کے حدود میں نہیں آ رہے آپ کے کاغذ, یہ پرائیویٹ جگہ ہے. تو جو ہے نا آپ جو وہ TM آفس ہے آپ ان سے رابطہ کریں, وہ آپ کو نقشہ پاس کر کے دیں گے. تو میں نے کہا کہ پہلے میں اتنی دیر سے خوار ہوئی ہوں, اتنا کچھ آپ نے تب نہیں بتایا, تو چلو TM کی طرف ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کام رکوا دیں, ٹھیک ہے کام رکوا دیں جو آپ نے شروع کیا ہوا ہے, تو لہٰذا آپ جا کے وہ TM جائیں گے تو ہو جائے گا, یا پھر ایسے کریں کہ آپ ہم سے بات کریں بیٹھ کے, ٹھیک ہے جو اس کا کوئی خرچہ پانی یا کوئی چیز بنتی ہے نا وہ ہم سے آپ بات کر لیں, تاکہ آپ کو کوئی روکے گا نہیں, تو آپ اپنا گھر سٹارٹ ہی رکھ لیں. چلو وہاں بھی کیا جانا, ہم سے ہی کر لیں. تو میں نے کہا بھائی میرے میں تو اتنے سورسز نہیں ہیں, میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں مزید جو ہے نا خرچہ اٹھا سکوں. میرے پاس جو بھی میرے پاس ہے میری جمع پونجی وہ تو میں اس گھر پہ لگا لوں گی, لگ گئے, تو میرے پاس اس نہیں. تو پھر بھی ٹھیک ہے, پھر آپ یہ ہم لوگوں کی اسے نہیں ڈھا دینا ہے آپ کو.
ये आपका घर, किसने कहा? ये LDA वाले कहते LDA हैं वालों ने। कि अगर आपने, मैंने कहा भाई क्यों उठाएंगे, मैं जब नक्शा बनवाने जा रही हूँ मैं TM के ऑफिस चली गई, मेरे छोटे भाई गए उसने, जिस दिन इस बात को अभी 3 दिन ही गुजरे थे, वो आए, मैंने मिस्त्री भी बंद कर दिया, मेरे मोहल्ले वाले गवाह है इस चीज़ के, मेरा घर बिल्कुल बंद था। आप देख रहे होंगे वहाँ पे दीवार मैंने कर दी, जो दरवाज़ा गुजरने का था ना, मैंने वहाँ पे दीवार करके इसे बंद कर दिया। ठीक है, बंद घर था, मैं साथ वाले घर में, वो जो रहती हूँ ना गली में, मैं वहाँ थी। अचानक क्या होता है कि घर बैठी हुई, मुझे सुबह को 10 बजे का टाइम था, तो मशीनों की आवाज़ें आई हैं, तो ऐसे जैसे धड़म से कोई जलजला आता है, कोई भारी चीज़ गिरती है। मैंने अपनी बच्ची को कहा, मैंने कहा बेटा ज़रा देखी बाहर कोई सड़क वाले हैं या क्या है। तो मेरी बच्ची ने यूँ बाहर निगाह मारी तो कहती अम्मी हमारी वाली गली में ना कुछ लोग भी जमा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ कहीं और रह रही हैं? हाँ जी, मेरा साथ वाले एक कमरे साथ का वाला घर है। घर है, हाँ ठीक जी, है। एक कमरे का कोई घर। आपको नोटिस नहीं दिया, कोई जाके आपको बताया नहीं कि हम आपका घर गिरा रहे हैं? मैं आपको ये बताने लगी कि जब हमें इन्होंने मना कर दिया, हम लोग उसी वक्त रुक गए। तो हम लोग तो वो TM ऑफिस की तरफ हो गए ना, उधर गए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी आप किधर से आए हो, तो उन्होंने कहा जी आप LDA की तरफ जाएं। उन्होंने हमें LDA की तरफ भेज दिया। फिर मैंने कहा वो कहते हैं इधर आओ, आप कहते हैं उधर जाओ, तो मैं कहाँ जाऊँ? मुझे ये समझ नहीं आ रही। अगर प्राइवेट जगह है, रजिस्ट्री वाली जगह है, तो फिर आप लोग कहते हैं नहीं बीबी उधर LDA वालों से आप रब्ता करो, ये हम बाद में देखते हैं। मेरा भाई आके मुझे बता रहा है इतनी देर में यहाँ LDA की गाड़ी आई है, बुलडोज़र लेकर आए, वो क्रेन वगैरह, और पुलिस की इतनी नफरी थी कि आधे 20-25 बंदे इधर, 20-25 बंदे उधर, और वो 3 बंदे, मैंने वीडियो भी बनाई और मैंने बाकायदा मास्क लगाए हुए थे उन्होंने। मुझे जब आवाज़ आई है ना गिरने की, मैं भागी आई, मुझे फिक्र पड़ गई। मैं तो मुतमिन हो गई थी कि मैंने काम रोक दिया है, अब वो मुझसे जब रब्ता करेंगे तब भी होगा ना। तो जब मैंने आके देखा तो मेरा घर ऐसे फेंका इन्होंने जैसे एक चिड़िया का घोंसला होता है ना, इतनी आसानी से कि यूँ पत्थर मारा और नीचे गिर गया। अब मेरी जिंदगी की जमा पूंजी थी, 1 सेकंड लगा बाजी, 1 सेकंड लगा, मेरे जितने भी ख्वाब थे, जो मेरे बच्चों का मुस्तकबिल था, 5 मिनट लगे गिरने में। मैंने उसे पूछा आदमी को, मैंने कहा भाई मुझे बताओ मेरा कसूर क्या, मेरा घर किस जुर्म पे फेंका जा रहा है? कहते हैं जी वो LDA वो करवा लिया आपने। मैं कहा लगे हुए, आपने अभी परसों ही तो मुझे TM के ऑफिस भेजा, मेरे भाई अभी भी उधर दफ्तर में बैठे हुए हैं, तो आपने मुझे बताया कि हम लोग गिराने आ रहे हैं, अभी भी साइड पे हो जाओ। पुलिस वाले ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे साइड पे कर दिया, और मेरे सर पे दुपट्टा भी नहीं था। पुलिस वाला कहता बीबी सर पे दुपट्टा लो, और जूती उतरी हुई थी मेरी। मेरे मोहल्ले वाले सारे गवाह हैं। मैं ना एक तो रोना धोना ज़ाहिर है, मेरे ख्वाब लूटे जा रहे थे, मेरा घर उजड़ रहा था। मैंने दुहाई डाली, मैंने कहा देखो भाई इस तरह ना करो, आपकी मेहरबानी है, मुझे मेरा कसूर बता दो पहले। जब आप कह रहे हो कि आपकी हद नहीं है, तो फिर आप LDA वाले किस कानून से आके मेरा ये घर गिरा रहे हैं? ठीक है, ना कोई नोटिस दिया, ना कोई नोटिस दिया। मैंने कहा फिर मुझे वो कागज़ दिखाएं जिस पे आपको ऑर्डर है, बीबी साइड पे हो जाओ, दफ्तर वालों से जाके बात करो। ऐसे गुंडागर्दी जैसे कि अटैक होता है, इस तरह तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। पहले इलाका ने या किसी ने उनको रोकने की कोशिश की? नहीं, वो बाबा जी बैठे हुए थे, क्योंकि पुलिस इतनी थी कि हर कोई घबरा रहा था। बाबा जी ने जरा हिम्मत की, या हमारे ये जो है ना साथ वाले मौलवी कारी साहब, ये लड़के आए हैं भाग के, इन लोगों ने आके कहा रुक जाओ, क्या कर रहे हो? कहा पीछे हट जाओ। इनका वो कारी साहब है, मैं रोने लग पड़ी। मैं कहा बेटा इनको मना करो। उसने कहा कि रुक जाओ। उनके कहते कहते भी इन्होंने 2 दफ़ा क्रेन मारी है, मेरा ये भी कमरा पीछे गिरा और वो दीवार भी गिरी। फिर उन्होंने कहा बस अब रुक जाओ, अब तुम लोगों ने उसका घर उजाड़ दिया, अब क्या रह गया पीछे? तो उन लड़कों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया। फिर मेरे मोहल्ले वाले बाबा जी निकले, और बाबा जी अंदर चलो, आपका कोई काम नहीं है। घर बना हुआ था पहले? नहीं, गिरा के कह रहे हैं। नहीं, पहले तो घर बना हुआ था। हाँ जो जी, गिराया 2 कमरे बने हुए थे। सहन, मैंने सिर्फ सहन को छत डाली आगे, ऊपर सिर्फ कमरा में डाल रही थी कि चलो मेरा जो गुसर बसर हो जाएगा। ठीक है, ये जगह कोई ना तो प्राइवेट है और ना कोई इस तरह से आती है कि इस तरह आके गिराई जाए। रजिस्ट्री इंतकाल में है, बिल्कुल लीगल मालिक हूँ। ये सारे घर रजिस्ट्री वाले हैं, सारे घर बनाए गए हैं, मेरा ही घर क्यों? ना तो नाजायज तजावजात में ये जगह आती है? नहीं, प्राइवेट बिल्कुल। ये सिकंदराबाद गांव है, ये तब का, ये 1965 की ये जगह हम लोगों ने रजिस्ट्री इंतकाल लेके बनाया गया था। मुझे कभी उस दफ्तर भेज रहे, कभी इस दफ्तर भेज रहे, कभी मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मैं अनलीगल हूँ या ये लीगल है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आ सकी।
जिससे आपने घर लिया था उससे राब्ता किया? उसने तो ये दरख्वास्त दी हुई थी, उसने मुझे ये कागज दे दिए थे। उसने कहा कि बाजी ये मैंने दरख्वास्त दी, उसका नाम बकायदा लिखा हुआ है, आप चले जाएं। जब मैं उनके पास गई उन्होंने कहा जी आप नए कागज लेकर आए, आप अपने नाम के लेके, मालिक बदल गया तो कागज भी बदल गए, ठीक है ना। तो अब जब मैं लेकर आई हूँ तो मुझे उधर भेजा गया, उन लोगों ने कहा इधर आ जाओ, वो कहते उधर चले जाओ। मैं और बात आ गई सिर्फ पैसों पे, और मैं पैसे बेटा दे नहीं सकती, ना मेरे में फसली है कि मैं एक्स्ट्रा पैसे देकर अपना घर बचा लेती। गरीब खातून है और शोहर इनका बीमार है, मेहनत मजदूरी करने वाले ये लोग हैं। घर बनाना कोई आसान काम नहीं होता, ये आप लोग भी जानते हैं, लेकिन इस तरह चंद सेकंड में किसी का घर गिरा देना जो है समझ से बालातर है। 9-10 साल की मेरी सेविंग थी, मैंने एक रुपया करके अपने बच्चों के मुंह से निकाल के जोड़ा, कमेटियां डाली मैंने कि चलो मेरे बच्चों का कुछ बनेगा, मेरा भी हीला वसीला बन जाएगा। बीमार है मेरे मियाँ। क्या अपील है अब आपकी? घर आपका गिरा दिया गया है, क्या अब आप चाहती हैं, क्या अपील है आपकी? मैंने तो सुना है कि मैंने देखा भी है कि ये मरियम नवाज साहिबा जो है हमारी जो वजीर आला है, ये बहुत काम कर रही है गरीबों के लिए और हम जैसों के लिए कर रही है। लोगों को घर भी दे रही है, घर घर जाके मैंने सुना है कि वो जा रही है और पूछ रही है। तो मेरी बेगम साहब से यही इल्तिजा है कि खुदारा मेरे बने बनाए घर को आप तो बना के दे रही है, मेरा बना हुआ उजड़ गया और मेरा कसूर भी कोई नहीं था, मेरा कोई कसूर भी नहीं था, उसके बावजूद भी मेरे बच्चों का घर गिराया गया। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे उजड़ा हुआ घर में जब मुझे दोबारा दिया जाए और इन लोगों को सबक दिया जाए कि किसी गरीब औरत का घर इस तरह उजाड़ा, इतनी आसानी से उजाड़ा नहीं जा सकता। गरीब खातून है और शौहर बीमार है, पहले भी मैंने बताया, छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना आशियाना इन्होंने बनाया हुआ था और वो गिरा दिया गया है। कि ये अपील है कि घर जो है इनका, ये जगह इनको दी जाए और इनके पास सारे कागजात जो है वो कंप्लीट है, लीगल ये रह रहे थे इस घर में और सारे कागजात जो है वो इनके पास, किसी किस्म का कोई ऑर्डर नहीं था कि किसी ऑर्डर के तहत आके इनका घर गिराया जाता है, कुछ इस तरह से कोई नोटिस नहीं दिया, कोई इतला नहीं दी। मैं भाग गई, मेरा बंद इन्होंने तोड़ा है किसी इजाजत के बगैर और गुंडागर्दी की गई है मेरे साथ बदतमीजी की गई। हाथ पकड़ के मुझे पीछे फेंका गया कि बीवी पीछे हो जाओ, ठीक है। मेरे पास अब इतने भी पैसे नहीं कि मैं मलबा एक साइड पे कर सकूं। सुबह से शाम हो गई है और ये इधर ही बैठी रोई जा रही है कि मेरा आशियाना उजड़ गया है, मेरा घर उजड़ गया है। सारी सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। हम लोग शुरू से ही नून लीग की तरह, ये वजीर आजम शहबाज शरीफ के मेरे मियाँ मैं, हम लोग सारे हमेशा इन्हीं के साथ रहे, हमारे वोट भी इन्हीं को ही गए हैं हमेशा। लेकिन आज हमें इनकी जरूरत पड़ी है, मेरे साथ मेरी हेल्प की जाए और मेरा इंसाफ मुझे दिलाया जाए। यही है कि इन इदारों से यही है कि मेरा घर मुझे बना के दिया जाए, मेरे बच्चों का हक मुझे दिया जाए। ये जो इन लोगों ने मुझे कहा गया कि ये इसे क्या कहते हैं नक्शा वगैरह पास, ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पूरे किए जाए और इनसे पूछा जाए कि इन लोगों ने मेरे साथ ज्यादती क्यों की है। मैं हूँ इतनी जोगी, मैं इतनी सोर्सेज है मेरे पास। लोगों के ये पीछे घर बने हैं, उन्होंने सील किया घर, ठीक है, उनका नक्शे का रोला था, उन्होंने वहाँ पे सिर्फ एक चिट लगाई है कि नोटिस लगा। मुझे तो किसी ने नोटिस भी नहीं दिया, मुझे तो किसी ने इतला भी नहीं दी कि अभी भी ये नोटिस लग गया आपको, बल्कि मेरे साथ है कि ना तो कोई किसी किस्म का नोटिस दिया गया है और ना ये जगह जो है ये आती है उसमें नाजायज तजावजात में आती है, इनलीगल हो या इस तरह की कोई चीज जो है वो सामने नहीं आई। उसके बावजूद बगैर नोटिस के इनका घर गिरा दिया गया। ये एक बड़ा सवालिया निशान है, किस बिहाफ पे गिराया गया, क्यों गिराया गया, कुछ भी कहना जो है वो इस वक्त कबल अज़ वक्त होगा। बाकी इनकी अपील यही है कि छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, शौहर इनका बीमार है और बड़ी मुश्किल से ये अपना गुजर बसर करते हैं, लोगों के घरों में काम करके ये अपना गुजारा कर रहे हैं और रुपये जमा करके इन्होंने ये जो घर बनाया था वो घर गिरा दिया गया है। मुझे किसी से नहीं उम्मीद, मुझे सिर्फ मरियम नवाज से उम्मीद है। मुझे मेरा दिल कहता है कि ये मेरे साथ जरूर चलेगी, आज इनका वक्त है जो मेरा साथ देंगी, क्योंकि मैंने हमेशा इनका साथ दिया, मेरे मियाँ ने, मैंने हमेशा इनको वोट डाले हैं और आज तक डालते आ रहे हैं। और मुझे इसी उम्मीद पे मैं इल्तिजा कर रही हूँ मरियम नवाज साहब, आज मुझे अपना हक अदा करे। आप आके मेरी खुद मुख्तार होकर मेरे सर पे हाथ रखिए और मेरी मदद की जाए और मेरा घर मुझे बना के दिया जाए दोबारा।